गॉट नो? Yes. Yes, yes. ओके चलो। दैन हमने सुबह का कौन बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, दैन वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट. So these all background color, this many properties which we have saw in the morning. Then let's come in the border properties. Okay, if I want to apply border to any element basically, so how we can apply, how we can do that? Okay, so chalo, let's have, I'm taking one paragraph here. Hello, welcome to the Google. क्लोज पैराग्राफ, अब इसको मैंने दे देता हूँ क्लास border. ठीक है, let's come in the css file. Let's have the new line. border एक क्लास है, ठीक है, which I can apply a dot. अब इसको हम css property कैसे देंगे? So in border also we have a lots of border styles are there are different style basically. Okay, so what is the property name? Border border hyphen style. Okay, I want the dotted border. ठीक है, then I have applied. Let me run the file on the abc24.html. So the entire border will came like this way. If we change it, we have a different style, dotted, dash, solid. If I have a solid, देखो solid हो गया, ठीक है. Groove. So this is a groove border. Okay. So we have a different border property, border styles basically. Uh, there is a possibility we can apply the border properties with the individual also, and we can shorthand also. Then if I want to increase the width of my border, so border hyphen width. Okay, so I just want to give 5 pixel, so I can increase the border width. Similarly, I have a border color. Red, I want the border color, so you can apply the border color with the help of border color property. Okay, so this is the way like we can exactly do. We can same, we can have a RGB value, hexadecimal value, color name value. You can give according to your requirement. Okay, अब border के sides भी होते हैं, ठीक है, individual border if I want to give. Okay, तो अब border के slides कौन से होते हैं? There are total 4 border. Okay, so there are 4 border sides, ठीक है, top, bottom, ठीक है. If I want to apply individual, मुझे सिर्फ top की border change करनी है, so border 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 space top. अब इसमें भी आपको if you want to do the style, okay, style जो भी if you want dotted. Okay, अब मैं CSS में जाके इन सबको टेम्पररी के लिए कमेंट कर देता हूँ.
कि मुझे अभी इंडिविजुअल के साथ खेलना है। बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, ठीक है। लेट मी सेव द CSS फाइल, रन द, ठीक है। अब देखो ये बॉर्डर टॉप आ गई। इंडिविजुअली यू कैन डू फॉर द राइट, अब सेम चीज है, राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सॉलिड, यहाँ पे आई वांट ग्रूव, यहाँ पे आई वांट डैश, ठीक है। यू कैन हैव अकॉर्डिंग टू दिस वे आल्सो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे चीजें। इफ आई वांट टू गिव इंडिविजुअल बॉर्डर, हम्म, Yes, yes, yes. ठीक है। अब आपने चलो, ठीक है। Just 1 second, I'm getting one call. Hmm? Yes, yeah, let's continue. अब सिंगल, इफ आई वांट टू गिव अ सिंगल, ओके। अब अपने सिंगल में भी ऐसे 4 पास कर दिए, डॉटेड, डैश, ग्रूव और डबल। इफ यू पास दिस वे, तो ये कैसे काम करेगा आपका, मैंने आपको पैडिंग और मार्जिन में एक्सप्लेन किया था, ओके। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी विल कंसिडर एज अ टॉप, देन सेकंड विल कंसिडर एज अ राइट, थर्ड विल कंसिडर एज एन बॉटम, और फोर्थ आपका कंसिडर होगा लेफ्ट, ओके। अब आपने चारों पास किया है। अगर आपने तीन ही पास कर दिया है तो फर्स्ट विल कंसिडर एज अ टॉप, सेकंड राइट एंड लेफ्ट, ओके, and the last one is an bottom only, ठीक है। अब आपने दो ही पास कर दिया, so top and bottom, if you pass only two value, and the second will consider as an right and left, okay. And if you pass only one, so it will consider all the four sides. Clear है यहाँ तक guys? Yes, Any yes, question, query? Yes, sir. Mhm. एकदम सही से, yes, sir. ओके, चलो। पहले top bottom, then Yes, sir. right. Clear. हाँ, सेम आपको मैडिंग, पैडिंग और Hmm. मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है यहाँ पे। Okay. अब CSS की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में मैं कैसे काम कर सकता हूँ, आई हैव अ बॉर्डर, मैंने बॉर्डर लिखा, ठीक है। प्रॉपर्टी, अब मैं पहले पास करूंगा साइज ऑफ द border, then style of the border and the color of the border. You can have this kind of way, जिसमें width, style, color तीनों आपने पास कर दिया है, बट इसमें एक फील्ड रिक्वायर्ड होगी, मैंडेटरी होगी, दैट इज नथिंग बट द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। आपने दो नहीं पास किया, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा कंपलसरी, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर Yes. लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ही चाहिए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के साथ, तो आप कैसे काम करोगे, बॉर्डर हाइफन, आपको चाहिए लेफ्ट, ठीक है, कॉलन, फिर आपने साइज दे दी, स्टाइल दे दिया एंड कलर दे दिया,
ठीक है, तो ये हो गया आपका, सिर्फ लेफ्ट साइड ही बॉर्डर आएगा। क्लियर है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी? हम्म। Yes. Yes. एनी Yes, क्वेश्चन sir. गाइस, एनी क्वेश्चन क्वेरी टिल नाउ? No. ठीक है ना, क्लियर है? Yes. हाँ. Yes. अभी जो भी बॉर्डर आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको राउंड करना है, राउंड में करना है। तो हाउ यू कैन डू इट? जस्ट यू कैन अप्लाई बॉर्डर IUS रेडियस प्रॉपर्टी कॉलन, आप उसकी साइज दे दो पिक्सल पे, ठीक है। और जिसमें आपने कॉमन बॉर्डर अप्लाई की है, इसके झमेले में सब कुछ आउटपुट तो नहीं दिखेगा, तो मैं इन सबको टेम्पररी कमेंट करके रखते, सारे झमेले में आपको एक ही आउटपुट दिखेगा, सारे आउटपुट नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 10 पिक्सल। ये हो गया रेडियस प्रॉपर्टी, RADIUS, ठीक है। तो ये मेरा कर्व हो गया बॉर्डर, ठीक है। Yes. Yes. कर्व हो जाता है मतलब हाँ, इसका रेडियस. रेडियस मतलब कर्व बेसिकली, कॉर्नर को मैंने मोड़ दिया रेडियस देके, ठीक है। चलो, Yes. अब आते हैं, मैंने मार्जिन और पैडिंग आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेम मार्जिन और पैडिंग को भी बताया था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, 3 होगा तो 2 होगा तो, और 4 होगा तो चारों तरफ होगा, ठीक है। अब एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, तो इसके अंदर भी तो पेडिंग मार्जिन सब दे सकते हैं बॉर्डर के अंदर. पहले तो चीज़ें अच्छे से समझो। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि पैडिंग मार्जिन अंदर के कंटेंट को नहीं होता, एलिमेंट को होता है, ठीक है। अब मैं देता हूँ, देखो मार्जिन, अब मैंने दे दिया मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है। हमने एक एलिमेंट ले लिया, उसको क्लास मार्जिन दे दी, हेलो वेलकम टू इंडिया, और मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी है मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। अब मैं रन करता हूँ तो देखो कुछ स्पेस छोड़ के आया। अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं देता ना, तो मेरा पैराग्राफ देखो स्टार्टिंग से होके आता, ठीक है। तो इसने कुछ स्पेस लिया है, मीन्स इट हैज टेकन, आई हैव अप्लाइड सम मार्जिन। अब ये जो कुछ डिफॉल्ट भी स्पेस ले रहा है ना, कहीं से तो थोड़ा लग रहा होगा, जो मैंने किसी और को दिया होगा, दैट काइंड ऑफ स्पेस विच इट हैज टेकन, ठीक है। स्पेस नहीं बट कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी दी होगी जो अलाइनमेंट या कुछ तो बोल सकते हैं जिसमें, तो उसकी वजह से क्योंकि दिस इज अ पैराग्राफ नो, क्या एक मैंने क्या एलिमेंट लिया हुआ है, पैराग्राफ नहीं लेता हूँ, H4 एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि जो कि पैराग्राफ को हमने ऑलरेडी बहुत सारी CSS अप्लाई की है, तो कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड हो गया है। अब अगर मैं इसको दे दूँ मार्जिन, तो ये 20 पिक्सल छोड़ के आएगा, तो ब्राउज़र और एलिमेंट का जो स्पेस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, ये तो लेफ्ट हो गया। अब इंडिविजुअल तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसी को लेफ्ट टॉप बॉटम राइट भी कर सकते हैं। अब मुझे इसको इंडिविजुअली में देना है एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, तो मार्जिन स्पेस मैंने 5 पिक्सल दे दिया, तो चारों तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा दे देते तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चारों तरफ से आपका स्पेस ले लेगा 10 पिक्सल का, ठीक है। हाँ, चलो रन कर देता हूँ। तो इसने चारों तरफ से देखो थोड़ा सा स्पेस ले लिया, क्योंकि मेरा ब्राउजर का स्क्रोल भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे चला गया था, बराबर। तो इसने चारों तरफ से स्पेस ले लिया। आप इसको वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे उतना वो स्पेस जनरेट करेगा, एलिमेंट और ब्राउजर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है? हम्म। ये हो गई आपकी मार्जिन की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। फिर आप इसमें 2 पास करोगे तो
4 पास करोगे तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, 3 पास करोगे तो टॉप सेंटर वाला राइट लेफ्ट होगा और लास्ट वाला बॉटम हो जाएगा, 2 पास करोगे तो टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट हो जाएगा, और फिर ए की वैल्यू पास करोगे तो चारों का आपका कंसिडर कर लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, हेलो। Yes. सर Yes. यस हाँ, तो एकदम साउंड्स बाय साउंड सर एकदम। क्लियर है सर। अब इसको मैं पैडिंग देता हूँ, ठीक है, पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल का। मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये जो स्पेस हुआ, बेसिकली दैट इज अ स्पेस, इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर। ठीक है, इसको मैं बॉर्डर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्पेस कितना जनरेट हुआ, अगर मैं इसको और स्पेस बढ़ाऊँ, पैडिंग को 30 पिक्सल कर दूँ, तो देखो आपका ऑटोमेटिकली स्पेस जनरेट हो रहा है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन है, आप F11 क्लिक करो या राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इस ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, बॉक्स मॉडल, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल बेसिकली। तो ये हो गया मेरा कंटेंट। अब मैं कौन सा एलिमेंट पे हूँ, इस वाले एलिमेंट पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंटेंट। कंटेंट देखो सिलेक्ट हो रहा है, हेलो वेलकम टू द इंडिया। ये हो गया पैडिंग, जो कि मैंने अप्लाई किया हुआ है 30 30 30 पिक्सल चारों तरफ से। ठीक है। हम्म। अब ये आ गई बॉर्डर, देखो ये बॉर्डर आ रही है, सिलेक्टेड एरिया। हाँ, अब ये हो गया मार्जिन, जो मैंने 20 20 20 पिक्सल चारों तरफ से दिया हुआ है। तो यहीं पे आपकी CSS क्लियर हो जाएगी। अब इस H4 को जाता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी अप्लाई किया है तो मार्जिन लेफ्ट तो काम नहीं करेगा, और मैंने शायद कमेंट भी करके रखा हुआ है, तो मार्जिन लेफ्ट विल नॉट गेट वर्क। अब इस मार्जिन को हटा देता हूँ, तो देखो हटाने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं मार्जिन आ रहा है, अभी डिफॉल्ट ब्राउजर की मार्जिन आ रही है, आप ऐसे कंसिडर करो, क्योंकि आई रिमूव दैट। पैडिंग रिमूव कर दूंगा तो देखो पैडिंग भी चला जाएगा, देर इज अ ब्लैंक स्पेस। नाउ बॉर्डर सिर्फ बची है, अब इस बॉर्डर को भी हटा दूंगा तो देर इज नो बॉर्डर, ओनली कंटेंट आई हैव। ठीक है, अभी चारों प्रॉपर्टी वापस मुझे अप्लाई करनी है, देन आई कैन सी। This is the way like how we can inspect the element in CSS with the help of this box model. ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कंटेन, सेकंड पैडिंग, बॉर्डर एंड आपका मार्जिन, क्योंकि आपने बॉर्डर जो दी है वो एलिमेंट को दी हुई है, और मार्जिन मतलब जो डिफरेंस होता है आपका ब्राउजर और एलिमेंट का डिफरेंस। क्लियर है यहाँ पे? Yes. हम्म, ठीक है। एनी डाउट गाइस? सर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर टेक्स्ट है ना? क्या बोल रहे हो? यहाँ पर जो एलिमेंट है वो टेक्स्ट है ना सर? एलिमेंट तो टेक्स्ट कैसे हो सकता है मेरे भाई? व्हाट इज द मतलब एलिमेंट यहाँ पे? बॉर्डर। बॉर्डर एलिमेंट कैसे हो सकता है? आपका एलिमेंट क्या है यहाँ पे? हम्म, व्हाट इज एलिमेंट? H4। अच्छा अच्छा अच्छा, बॉर्डर ओके। तो प्रॉपर्टी हो गई ना मेरे भाई, यस सर यस सर। बॉर्डर तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, मार्जिन आपकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आपने फीचर्स देखे उसको कुछ बढ़िया का करवाया उस एलिमेंट को। बट सर मतलब ये टर्मिनोलॉजी में थोड़ा डाउट है, तो H4 तो हमारा टैग है ना? हाँ, तो टैग को ही एलिमेंट बोलते हैं ना। टैग को आप कितने नाम दे सकते हो, टैग, मार्कअप, अच्छा। एलिमेंट। ठीक है। ओके सर, ये नहीं पता था सर मेरे को एलिमेंट और टैग सेम होते हैं इसलिए हाँ कंफ्यूजन तो है। ऑब्वियसली ना, आप इसको प्रॉपर्टी कैसे बोल सकते हैं? H4 इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, H4 इज ठीक है। HTML एलिमेंट, HTML मार्कअप, HTMल टैग, और उसके ऊपर मैंने कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लगाई है CSS की, दैट इज अ मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर। ठीक है, हाँ। ओके ओके सर। बॉर्डर ही कोई एलिमेंट हो नहीं सकता। ठीक है सर। क्लियर हुई चीजें? हम्म। हाँ, तो सेम मार्जिन और पैडिंग का भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है।
4 3 2 1 वाला कॉन्सेप्ट मैडिक पैडिंग में भी आता है और मार्जिन में भी आता है, ठीक है। आप उसको सेपरेट दो, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, आपको एक साथ देना है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के साथ दो। अगर कहीं पे नहीं चाहिए तो यू कैन पास एज अ 0 0 पिक्सल, सो इट विल नॉट कंसिडर द दैट साइड। मतलब अगर आपने यहाँ पे दे दिया कि भाई यहाँ पे मुझे 0 चाहिए टॉप में, बट बाकी 3 साइड पे आपका 30 पिक्सल, तो ये देखो ऊपर के ऊपर से 0 हो गया, मतलब नो स्पेस, बट अदर 3 पोजिशन हैव अ स्पेस। अगर आपने नीचे से भी कर दिया 0, तो सी नाउ लेफ्ट एंड राइट आपका हो गया। क्लियर है? हम्म। यस। चलो, अब आपको कोई एलिमेंट को हाइट विड्थ देनी है बेसिकली। ओके, सो मैंने एक डिव ले लिया है, उसको मुझे हाइट देनी है समथिंग कुछ तो 200 पिक्सल, ऐसे कंसिडर करो। विड्थ देनी है समथिंग कुछ तो आपको 100 पिक्सल। आप पर्टिकुलर कलर भी दे सकते हो समझने के लिए कि भाई कितना हुआ कितना नहीं। मेरे ब्राउज़र का एक का एलिमेंट है। डिफॉल्ट हाइट, यस, बोलो। मतलब डिफ का कुछ डिफॉल्ट कुछ है क्या, मतलब मतलब लाइक डिफ़ॉल्ट जितना मतलब कंटेंट जाएगा उतना, मतलब हाइट विड्थ, देखो, मतलब एक कंटेंट, हम्म, आप क्या बोल रहे हो? ड्यू का डिफ़ॉल्ट क्या मतलब? मतलब हाइट, मतलब एक कंटेंट, डिफ़ॉल्ट मतलब एक हाइट जो विड्थ कैसे मतलब होगा? कुछ कोई भी एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप div ले रहे हो तो उसका डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ कैसे होगा मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा। अगर आपने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं एलिमेंट को, ठीक है? नहीं, मैंने मतलब कुछ लिखा है, आई गेस आई हैव नहीं, रिटन समथिंग अगर मैंने पैराग्राफ कुछ कुछ लिखा लिखा है। ही नहीं है तो मैंने मेरा div एलिमेंट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्राउज़र पे है, मतलब वो रन हो चुका है, बट देयर इज नथिंग, कुछ कंटेंट भी नहीं है, तो कंटेंट आएगा उस हिसाब से वो अपना हाइट विड्थ लेगा। अच्छा, कंटेंट के साथ लिखा है ना। ठीक है, इसने इतना कंटेंट दिखा दिया, बट अगर मैं इसको निकाल दूँ तो जो कंटेंट है उतना दिखेगा, बट पर्टिकुलर मुझे उसको उसका एक 50-50% का हाइट विड्थ सेट करना होगा, तो दैट आई कैन डू विद दिस वे। ओके। ठीक है। यस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस। अब इसमें एक और एक प्रॉपर्टी होती है, इस विड्थ के अगेंस्ट आप मैक्स विड्थ सेट करोगे तो ये आपका थोड़ा ज़्यादा देता हो, तो ये आपका रिस्पॉन्सिव भी कर लेगा डिव को। ठीक है, अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन में भी ओपन करूँ, ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है, तो मेरा डिव पूरा रिस्पॉन्सिव होगा बेसिकली। इंस्पेक्ट मोबाइल व्यू, हमारी वेबसाइट पूरी एंटायर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो प्रॉपर दिखेगा नहीं, बट अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी कर लूँ तो फट नहीं रहा है मेरा डिव कहीं पे भी।
अगर अदर अदर एलिमेंट्स देखो, ए वाले एलिमेंट फट फट रहे होंगे तो बट मेरा ड्यू नहीं फटेगा, क्योंकि मैंने उसकी मैक्स विड्थ सेट कर दी है। ठीक है, तो ब्राउजर्स के हिसाब से कोलैप्स हो जाएगा। बाकी एलिमेंट में स्क्रोल आ जाएगा। अब ये स्क्रोल आ गया उस इमेज की वजह से, दिस इमेज विच वी हैव अप्लाइड बैकग्राउंड इमेज। अगर मैं इसको अभी के लिए नहीं चलता, ठीक है, स्क्रोल क्यों नहीं गया मेरा, और क्या, हाँ दिस अदर एलिमेंट्स आर आल्सो देयर। ठीक है, दैट्स द रीजन दिस स्क्रोल इज कमिंग। ओके, बट हाँ ये पैराग्राफ पे एक लेके रखा हुआ है मैंने। नो स्क्रोल, हम इसको कितना भी मिनिमाइज करते जाओ तो प्रॉपर दिखेगा। तो मोबाइल स्क्रीन में देखो तो मैं इसको मोबाइल स्क्रीन, माई div is coming, सी जो भी दिखूंगा उसमें मेरा div प्रॉपरली उस हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि उसकी मैक्स विड्थ सेट कर दी है मैंने। तो उसका कंटेंट भी बाहर नहीं जाएगा और वो आपका ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा मैक्स विड्थ से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। चलो, अब CSS में एक आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है। आउटलाइन जो होता है वो आपका बॉर्डर के ऊपर होता है बेसिकली। कंटेंट बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर आप और एक आउटलाइन दे सकते हो एलिमेंट को। तो अभी एक आउटलाइन प्रॉपर्टी आपको कैसे देना है? फर्स्ट आपका आउटलाइन स्टाइल होता है। ठीक है, एक आउटलाइन आ गया, ये बॉर्डर के ऊपर आएगा। अगर मैंने सपोज इसको यहाँ पे बॉर्डर दे के रखा हुआ है, तो देखो बॉर्डर आपका अंदर आएगा, उसके ऊपर आप एक आउटलाइन चढ़ा रहे हो उस एलिमेंट को। ठीक है, पैडिंग बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर आपका आउटलाइन रहेगा। देखो, बॉर्डर पहले आ रहा है फिर आउटलाइन आ रहा है। ठीक है, अब इस आउटलाइन में भी आपके पास ऑप्शन है। आप आउटलाइन स्टाइल दे सकते हो, आउटलाइन कलर दे सकते हो आपके हिसाब से। आउटलाइन की विड्थ दे सकते हो। ये आउटलाइन कहाँ यूज होता है कि जगह तो बॉर्डर भी सेम ही काम कर रहा है अपने। और इसको आप फिर से कॉमन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में दे सकते हो। डॉटेड चाहिए, 5 पिक्सल का चाहिए, या रेड कलर का चाहिए। यू कैन डू विथ दिस वे ऑल्सो और दिस वे ऑल्सो। मैं आपका आंसर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपने कलर विड्थ ऑफसेट लगा दिया, या आप डायरेक्टली शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के साथ दिखा सकते हो। ठीक है, ये जो आपके सारे आउटलाइन के कलर वगैरह स्टाइल वगैरह जो भी मैंने अप्लीकेबल किया था, दैट्स ऑल प्रॉपर्टीज केम हियर। अब आप बोल रहे हो कि बॉर्डर भी यही काम कर रहा है, आउटलाइन भी यही काम कर रहा है। तो देखो, पहले तो बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन आता है, पहली बात तो। ठीक है, अब आउटलाइन का एग्जैक्टली यूज क्या है? देखो,
चलो, अभी बॉर्डर एक एलिमेंट का पार्ट था। बॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ, मतलब बॉर्डर एक, हम अगर कोई भी एलिमेंट को बॉर्डर अप्लाई करते हैं ना, तो वो जो बॉर्डर है ना उस एलिमेंट के डायमेंशन का पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट के ऊपर मैंने जो भी बॉर्डर एप्लीकेबल की, वो सी इस बॉक्स मॉडल का पार्ट आ रहा है। बट अगर मैंने जो आउटलाइन अप्लाई की है ना, वो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डायमेंशन। देखो, मार्जिन है, बॉर्डर है, पैडिंग है, कंटेंट है, बट मेरा आउटलाइन कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो मुझे कहीं पे ऐसा रखना है, मतलब मुझे कोई ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके ऊपर मुझे कोई डायमेंशन का इफेक्ट नहीं रखना है। मतलब आई डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ डायमेंशन विद द बॉर्डर। मतलब अगर मुझे इस चीज को रिमूव करना है, देन आई कैन गो विद द आउटलाइन आल्सो। दैट इज अ पॉसिबल वे, बेस्ट वे। अगर मुझे बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर आ गया तो आपका फिर कैलकुलेशन भी आएगा। देखो, अभी तो आप चीजें सीख रहे हो, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो, बट एक्चुअल में कोई वेबसाइट बनाओगे आप, तब आपको सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई मेरा हेडर कितने साइज का होगा, फुटर कितने साइज का होगा, मेरा ब्राउजर का पेज का हाइट वेट कितना होगा, स्टैंडर्ड हर एक डिव एलिमेंट का। तब सारी चीजें कैलकुलेशन पे काम करेगी। तब अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ एलिमेंट आपने ऐसा रखा हुआ है जहाँ पे आपने कुछ कैलकुलेशन करके कोई एलिमेंट को डिस्प्ले किया है, बट आपका कैलकुलेशन प्लस माइनस हो रहा है, वहाँ पे आपको बॉर्डर की जरूरत नहीं है, बट आपको बॉर्डर जैसे कुछ दिखाना है, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस आउटलाइन। ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है, तो अभी ये आउटलाइन हम्म, से आपके आपके एलिमेंट के हाइट विड्थ के डायमेंशन पे कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा बेसिकली। सिंपल चीज। ओके। ठीक है। हम्म, देख, ठीक है, अगर आप बॉर्डर लोगे तो डेफिनेटली फिर आपने अगर हाइट विड्थ 100 पिक्सल ले लिया है और आपने ऑलरेडी 10 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया है, तो फिर आपको बॉर्डर के कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी हाइट विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। यस यस। नहीं तो फिर आपका पूरा पेज गड़बड़ कर देगा। मतलब वैसे आउटलाइन, मतलब आउटलाइन में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब। हाँ, आपको आउटलाइन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटलाइन का जो भी स्पेस होगा आपको आपका एलिमेंट डायमेंशन में कंसिडर नहीं होगा। ओके। वो आपके, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एलिमेंट डायमेंशन। सिंपल चीज, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बट बॉर्डर इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ योर एलिमेंट डायमेंशन, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है बॉक्स मॉडल में। यस। फिर आपको कोई एलिमेंट 10 बाय 10 का डिजाइन करना है और आपको बॉर्डर भी देनी है, तो बॉर्डर प्लस उसका 10 बाय 10 कंसिडर करके आपको एक फाइनल कैलकुलेशन बना के उसको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपके पेज में स्क्रोल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई भी वेबसाइट को देखो, वर्टिकल स्क्रॉल होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होता है। यस। सही बोला ना मैंने? हाँ। और वो ऑफसेट क्या है? ऑफसेट, ऑफसेट का मीनिंग? हम्म, आप क्या बोल रहे हो? ऑफसेट, आउटलाइन आपका एक तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गया बेसिकली। अब ये हाँ। ऑफसेट क्या काम करता है? ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको ऑफसेट क्या काम करता है यहाँ पे। क्या समझा आपको ओके। ऑफसेट? आपके बॉर्डर एलिमेंट और आउटलाइन के बीच में अगर स्पेस ब्रो। देना है, तो आप दे ऑफसेट। सकते हो। देखो, आपके पास ओके। कभी तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट आएगी, सॉरी। ये आपका वेब पेज है, आपको कोई 3 डिव ऐसे दिखाने हैं जो तीनों सेम हो। अब मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ मेरा आगे पीछे हो सकता है। तो तीनों डिव ऐसे है मेरे, ठीक है, उसको बॉर्डर भी है, बट मुझे उसको एक कर्विकल कुछ दिखाना भी है, आउटलाइन जैसा। ओके। तो देन आई कैन यूज द आउटलाइन कॉन्सेप्ट हियर। यस हम्म यस यस। पॉसिबल? यस। क्लियर है? यस। अभिषेक, क्लियर है सर। क्या अभिषेक?
नहीं 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 पे हूँ सर। जग रहे हो ना? हाँ। क्लियर है। चलो, अब आते हैं हम लोग फॉन्ट स्टाइल पे। अब मैं लास्ट प्रॉपर्टी लेता हूँ आज की, नहीं तो फिर सब ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट मेरा आता है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अगर मुझे इसको नॉर्मल रखना है, इटालिक करना है, ठीक है, देन आई कैन यूज द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। आ गया? तो इसको मैंने, कोई तो एलिमेंट है जिसको मैंने बॉर्डर दिया होगा h1 को, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको स्पैन ले लेता हूँ। इस स्पैन को मैंने कोई एट्रीब्यूट दिया नहीं यहाँ पे। ठीक है, आ गया टेक्स्ट इटालिक। फॉन्ट फैमिली संशरित कर रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, चेंज हो गया। हाँ, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साइज चेंज हो गया, इसको 50 पिक्सल भी कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी, जो मैंने फॉन्ट का टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये जो हमने HTML में फॉन्ट पढ़ा था, उससे हमने फैमिली, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर, तीनों चीज़ें अप्लाई की। क्लियर है यहाँ पे? यस। सर इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, वो हम कहाँ से देख सकते हैं सर? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, आप कहाँ से देखोगे चीज़ें। आपको अप टू डेट हम्म। बता देता हूँ कि आप कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ोगे जो आपको हम्म। हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम्म। फॉन्ट में भी एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब डायरेक्टली शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अप्लाई करो। ठीक है, फॉन्ट लिखा आपने 20 पिक्सल, आपने एरियल दे दिया और या sans serif दे दिया। ठीक है, sans serif दे दिया। आप मल्टीपल फॉन्ट्स भी नहीं दे सकते हो। अगर आप उसको sans serif नहीं मिला आपके सिस्टम में, देन ही विल सर्च फॉर द एरियल। ठीक है, यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। आपने इसको स्टाइल देनी है, इटालिक देना है, देन यू कैन हैव इटालिक ऑल्सो। फॉन्ट 20 पिक्सल मेरी साइज हो गई। एक पहले कंट्रोल वाई, मेरी, ठीक है, स्टाइल, साइज और फॉन्ट स्टाइल, ये नहीं मिला तो इट विल कंसिडर एज अ दिस एज अ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, these आर दी सम बेसिक फॉन्ट प्रॉपर्टीज: फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, और फॉन्ट इज एन नथिंग बट द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? हम्म,
यस यस ठीक, ओके। यस। तो अभी हम यहीं पे रुकते, विल सी अदर प्रॉपर्टीज इन आवर संडे सेशन। ठीक है, जिसमें बहुत सारी है, आइकन्स कैसे अप्लाई करने हैं, लिंक्स कैसे अप्लाई करनी है, जो हमने लिस्ट एचटीएमएल में किया था उसको कैसे यूज करना है सीएसएस के थ्रू। ओके, then we have a tables, display inline block, display inline, float left, float right। तो ये सारी चीजें हम, पोजीशन क्या होती है बेसिकली, पोजीशन देर आर रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, डिफॉल्ट पोजीशन। ठीक है, तो कैसे कोई एलिमेंट अपनी खुद की पोजीशन डिसाइड करता है, तो दैट विल सी एवरीथिंग इन डिटेल इन आवर संडे सेशन। ठीक है, अब वेर यू गाइज कैन लर्न दिस ऑल इन डिटेल बेसिकली। अब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं आपको क्या बोलते हैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी मिलेगी जो जितनी भी है, मतलब एज पर माई नोट्स। अगेन स्टिल यू गाइज हैव ऑप्शन, यू कैन सर्च w3school.com, ओके, जिसमें यू कैन फाइंड द CSS एज अ ट्यूटोरियल। दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट जिसमें जब भी कोई CSS की नई प्रॉपर्टी आती है मार्केट में, जब भी कोई HTML में अपडेट आता है, इट विल गेट रिफ्लेक्ट इन दिस साइट w3school.com। ठीक है, यस सर। क्लियर है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइट फॉर द HTML CSS अपडेट्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें देखो आपको ठीक है। सारी चीजें पता चल जाएगी, यू गाइस हैव एवरीथिंग हियर। ठीक है, यस सर। तो जिसपे आप सारी चीजें आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, और मेरे भी नोट्स यही से रहेंगे सब कुछ, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट वेबसाइट अस ऑल्सो इफ एनीथिंग न्यू केम इन द मार्केट अगेंस्ट द HTML एंड CSS। ठीक है, देन डेफिनेटली हमको भी ये वाली साइट ही फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज अ W3 रिकमेंडेशन साइट which is always give us the latest update against the HTML CSS markup languages। ठीक है, चलो, यस यस। बाकी तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा मैंने आज तक जहाँ पे प्रॉपरली उसकी खुद की डॉक्यूमेंटेशन की साइट है और जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन साइट नहीं है HTML CSS के लिए। वॉट एवर इट विल कम इन दिस साइट, इट्स ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मेरे को लगा जैसे वो पाइथन वो आता है ना, लाइक हाँ, डिफरेंट बट पैकेजेस, हमने तो ऐसा कुछ। मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं है HTML डॉक्यूमेंटेशन, आप देखोगे ना, हम्म। बट ऐसी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, वो आपको W3 स्कूल ही रिफर करेगा मतलब। ओके तो ये ओके। तो डॉक है, तो अभी किसी ने बना के रखा होगा। दिस इज अ थर्ड पार्टी, जिस MDN वेब डॉक करके उन्होंने बना के रखा हुआ है। बट मोस्टली आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको यही बताएगा W3 स्कूल, बिकॉज इट्स वेब वालों का ही रिकमेंडेशन है बेसिकली, कि वेब वालों ने ही इनको दिया होगा सब कुछ बनाने के लिए। बाकी ये डेव डॉक्स भी मतलब थर्ड पार्टी है, कि भाई किसी ने डेव डॉक्स कोई होगा जो जिसने ये पूरा सब कुछ बना के रखा हुआ है ऐसा। फिर आपके पास दिस आर दी अदर्स ऑप्शंस बेसिकली, कि आप चेक कर सकते हो। बट अगर आप इजीली चीज़ समझना चाहते हो, इजीली चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो बेस्ट वे आई कैन सजेस्ट दिस ऑन w3school.com। बाकी तो फिर ये दूसरे लोगों ने बना के, जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं वैसे उन्होंने बना के रखा होगा। दिस आर दी अदर डॉक्यूमेंट बेसिकली। मुझे तो नहीं लगता, कि मैंने तो कभी सुना नहीं है कि HTML.com जिन्होंने HTML लाया हो उनकी साइट, बिकॉज HTML हैज केम ड्यू टू द W3 वेब का, वेब वालों ने लिया लाया, वेब वालों का स्टैंडर्ड है, मतलब नेविगेटर वालों का स्टैंडर्ड है। तो ये तो किसी ने इस नाम का URL लिया हुआ है, उसने उसके नोट्स डाले हुए हैं, बाकी तो नहीं। दिस इज समथिंग डेफिनेटली नॉट HTML का ऑफिशियल साइट, थर्ड पार्टी बंदा होगा जिसने ऐसा डोमेन नेम लेके रखा हुआ है, देन ही पोस्टेड दिस आर्टिकल काइंड ऑफ थिंग। बाकी तो ओके ऐसा सर। कोई HTML का और CSS का डॉक्यूमेंटेशन मैंने तो नहीं देखा।
हाँ, आपको पाइथन का मिल जाएगा, देखो CSS का भी नहीं, जैसे मोजिला वालों ने बनाया है, डेवडॉक्स वालों ने बताया है, बट हम W3 स्कूल वालों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज ये W3 कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक हो सकता है W3 ORG, W3 से रिकम हाँ W3 वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो CSS के लिए। बट फिर इसमें इनके डॉक्यूमेंटेशन ऐसे अजीब होते हैं ना, तो इसको समझने के लिए इतना टाइम लगता है। बट हाँ, मतलब इसका UI यूजर इंटरफेस इतना गंदा है, देखो, तो पीपल कांट अंडरस्टैंड एंड कांट वांट टू रीड हाफ एन आवर ऑल्सो इन दिस बेसिकली। बट अगर वही मैं इसको खोलूँ तो भाई थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल के भी देखे रखा हुआ है, हर चीज़ देखे रखी है, हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से, तो थोड़ा सा कैंडिडेट को भी इजी पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये एक हो सकता है, ये दिस इज द ऑफिशियल साइट W3 ORG वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब these are the other things the other people has created। ठीक ठीक है। है सर। Anything else guys? Sorry, any more question? नो सर। सुमित? नो नो। ओके, फिर मैं एंड करूँ सेशन। यस सर। तो गाइस, फॉर वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं मॉर्निंग तक कर पाऊँगा, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगता है। मुझे पहले यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, देन यूट्यूब पे फिर वो पूरा वेरीफाइड होता है कि इसमें कॉपीराइट का कंटेंट है नहीं वगैरह। देन वो 1 घंटा लेता है पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करने में, देन दैट वीडियो इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो मे बी अभी अभी होगा नहीं होगा, तो मॉर्निंग में मैं जैसे ही मॉर्निंग में बैकअप पहुँच जाऊँगा वैसे ही डाल दूँगा वीडियो। ठीक है। ठीक है सर। बाकी आज जो मॉर्निंग में हुआ है, यू गाइस लर्न दोस थिंग्स, उसको कंप्लीट करो। ठीक है। यस सर, यस सर। ओके। बाकी वन ड्राइव में कंटेंट आई एम गोइंग टू अपलोड इट नाउ। ओके।